Assalamualaikum everyone, this is Hussein and I'm an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. Hope you guys must be doing well. You guys must be having a ball and healthy. So in this video I'm going to teach you two modal verbs which are may and might. Definitely I will tell the concept between both of them. मैं आपको इन दोनों के difference between बताऊंगा that where you guys can use may and might. As if I'm talking about may, so we study so many things about may, like it talks about possibility, asking and giving permission, like for the request as well, and wishes and prayers. So I will clear you all the concept of may, and definitely I will discuss something about might, that what is the difference between actually what, because most students get confused to use might and may, that where we can use might or may. So till the end of the video you guys need to understand the whole lecture, like till the end of the video you guys need to stay, and definitely you will be able to get to know that where you guys can use. So still, if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching upcoming videos. It means that you guys will get the notification. So what are you thinking, guys? Let's begin the video. So you guys can see on the screen over here, may and might topics are written over here, and I have written a definition including formation. मैंने यहाँ पे definition भी लिख दी है और formation भी लिख दिया, and with the help of both of this, I will make you understand कि आप इसके sentences कैसे बना सकते हैं. So now let's begin it. Yeah. So now firstly, I'm going to read the definition. It talks about possibility, asking or giving permission, and wishes or prayers. मतलब ये may, this is the definition of may. ये मैं बेसिकली पॉसिबिलिटी का क्या मतलब, यानी वो काम जो फ्यूचर में हो सकता है, पॉसिबल हो, मुमकिन हो. एंड आस्किंग और गिविंग परमिशन. आस्किंग और गिविंग परमिशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डज इट मीन? कि किसी को यानी परमिशन देना, या किसी से पूछना, जैसे कि लाइक सपोज आई एम आस्किंग, may I go to washroom, sometime you say may I go to drink water, और इस तरह से you guys ask the permission, or may I come in the class, इस तरीके से. If you are like giving the permission, like you may go outside, you may go in the class, or you may come in the class, you may drink water, so ये आपकी एक giving permission हो गई. And then we are talking about and wishes or prayers. What does it talk about? Wishes and prayers, these are very important thing. Like students must be aware कि उनको पता होना चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मे का इस्तेमाल हम विशेस और प्रेयर्स के लिए भी करते हैं. It's very important. And if you guys need to understand about how we can use like may for the wishes and prayers, so till the end of the video you guys need to watch my video, because at the end I have explained, मैंने wishes और prayers का आखिरी में explain करा है कि how you guys can make the sentence of wishes or prayers by using may. Fine. So you guys can see the definition यहाँ पे. Formation मैंने यहाँ पे लिख दी है. It's like quite easy. Subject, may, verb, first form plus object. It is affirmative. कि आपने पहले सब्जेक्ट, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन सो मेनी वीडियोस कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट जो डूअर होता है, करने वाला होता है, एंड देन यू आर यूजिंग मे मॉडल वर्ब, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट. इट्स अ अफर्मेटिव फर्स्ट फॉर्म, लाइक फर्स्ट फॉर्म यू हैव टू यूज. एंड देन नेगेटिव में आपको क्या करना है, जस्ट ओनली यू हैव टू पुट नॉट, और उसके बाद आपका सेंटेंस जो बन जाएगा नेगेटिव में बन जाएगा. आई विल टेल यू इन द लाइक आफ्टर एक्सप्लेनिंग फॉर्मेशन, मैं आपको बताऊंगा कि आप यानी सेंटेंसेस नेगेटिव में, अफर्मेटिव में कैसे, और यानी और डिटेलिंग आई विल गिव द रिप्लाई. और यहाँ पे आ जाए आप इंट्रोगेटिव में. इंट्रोगेटिव में आई हैव रिटन मे फर्स्ट, आई विल राइट मे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. आई होप यू मस्ट हैव गॉट अबाउट मे की मैंने डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दी है, एंड आई हैव एक्सप्लेन फॉर्मेशन एज वेल. नाउ लेट्स मूव टू माइट. और मे का आई वुड लाइक टू टेल वन मोर थिंग कि मे में हम ज्यादातर हम जस्ट ओनली प्रेफर टू यूज आस्किंग और गिविंग परमिशन. हम नॉर्मली इसके सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में नहीं बनाते हैं. लाइक may I go to picnic, क्या मैं पिकनिक जा सकता हूँ, may I come to meet you tomorrow. ये प्रीफरली बेसिकली हम ज्यादातर गिविंग और परमिशन की सिचुएशन के मुताबिक बनाते हैं. अगर ये परमिशन और सिचुएशन की, गिविंग परमिशन और आस्किंग की बात नहीं करते, सो इट्स नॉट मैंडेटरी टू यूज. यू कैन यूज कैन एज वेल, कुड एज वेल. ठीक है. सो ये बात थी. नाउ लेट्स मूव टू डेफिनेशन ऑफ माइट. इट टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी विद लेस नंबर ऑफ चांसेस. अच्छा, माइट भी जो है वो पॉसिबिलिटी बात करता है, पॉसिबिलिटी की बात करता है, बट यहाँ पे लेस नंबर ऑफ चांसेस, मतलब उसके जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं. जैसे कि अगर मैं कहूं कि वो पिकनिक पर आ सकती है, शी माइट कम टू द पिकनिक, मतलब आपके लेस नंबर ऑफ चांसेस है, ज्यादा चांसेस नहीं है उसके आने के. लाइक इफ आई एम सेइंग कि वो मुझसे मिल सकती है, शी माइट मीट मी, बट
बट होता क्या है, उसके लेस नंबर ऑफ चांसेस है, मतलब वो शी माइट बी बिजी समवेयर एल्स, वो कहीं और हो सकता है बिजी हो, जब भी वो नहीं मिल सकती, ठीक है, यानी मिल सकती है, इट्स लाइक अफर्मेटिव में मैंने आपको सेंटेंस बनाया। नाउ लुक एट द फॉर्मेशन, आई होप यू मस्ट हैव गॉट द कॉन्सेप्ट कि जिसमें 30 और 40 नंबर परसेंट चांसेस होते हैं कि जो काम पॉसिबल हो जाए, यानी पॉसिबिलिटी, बात ये भी पॉसिबिलिटी की कर रहा है, मगर इसमें चांसेस कम होते हैं। नाउ लुक एट द फॉर्मेशन ओवर हियर, सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने, यू माइट हैव ऑब्जर्व, you might have seen, you might have listened so many sentence of might, क्या आपने जरूर हो सकता है सुने हो might के सेंटेंस, यहाँ पे have क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा हूँ, वो आपको इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका पास्ट का इस्तेमाल भी आप करते हो, मे का और might का। फाइन, सो नाउ नेगेटिव में मैंने नोट लगाया, जैसे कि मे instead of may you guys writing might over here, so क्योंकि might की फॉर्मेशन है subject might not plus verb first form object, and then in interrogative might plus subject verb first form plus object। सो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है फॉर्मेशन की। नाउ लेट्स मूव टू द सेंटेंसेस। सो नाउ ओवर हियर यू गाइस कैन सी हाउ टू यूज सेंटेंसेस, यानी इसके सेंटेंसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव, आई हैव जस्ट ओनली रिटन अफर्मेटिव मे के और माइट के, बिकॉज इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू दैट इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। यहाँ पे आप देखें, अली इज टायर्ड ही मे स्लीप, अली जो है वो थका हुआ है, वो सो सकता है, लाइक इट इज कॉल्ड लाइक गिविंग परमिशन, it is called giving permission कि वो अली थका हुआ है, वो सो सकता है। now second sentence, they may take permission, वो इजाजत ले सकते हैं, like this is a sentence, weather is cloudy, वेदर जो है वो बहुत क्लाउडी है, मतलब वेदर जो बहुत अच्छा हुआ है कि रेनी जो होता है ना, रेनी वेदर यू कैन से, इट मे रेन, बारिश हो सकती है, बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की। एंड यहाँ पे आए आप सेकंड, ये थर्ड फोर्थ सेंटेंस में, जहां पे मैंने लिखा है ही मे बी अ टीचर, व्हाट डज इट मीन, कि वो टीचर हो सकता है, ये भी वही सेंटेंस है, बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, बट ये सेंटेंस में मैंने वर्ब का इस्तेमाल नहीं करा, यहाँ पे बी एज अ स्टेट वर्ब आई हैव यूज्ड। बी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर था, बी इज एम आर, बट मॉडल वर्ब में व्हेनेवर वी आर यूजिंग मॉडल वर्ब, सो वी यूज बी। जब भी, जैसे कि अगर कैन का भी बनाया तो हम ये कह सकते हैं ही कैन बी अ टीचर, सो बोथ सेंटेंस विल बी कंसीडर सेम, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कैन और मे यूज किया जा रहा है पॉसिबिलिटी की बताने के लिए। ही मे हैव अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर भी मैंने स्टेट्स का इस्तेमाल करा है, कोई एक्शन यूज नहीं करा। इन दीज सेंटेंसेस यू कैन सी आई हैव यूज्ड स्लीप, टेक और रेन, दे आर लाइक एक्शन, बट यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, तो मैंने ये दो सेंटेंस यूज करे हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि दीज सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस कैन बी मेड इन मे, कि आप इस तरह के सेंटेंसेस मे में बना सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू माइट। माइट में शी माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकती है, यहाँ पे मैंने स्टेट का सेंटेंस बना के बताया आपको कि वो घर पे हो सकती है, मतलब लेस नंबर ऑफ चांसेस है, मे बी शी माइट बी समवेयर एल्स, हो सकता है वो कहीं और हो, बट शी माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकती है आज। फाइन, नाउ लेट सेकंड सेंटेंस, ही माइट बी इल, वो बीमार हो सकता है, ही माइट बी इल, वो बीमार, मतलब लेस चांसेस है, 30 और 40% चांसेस है कि वो बीमार हो सकता है, बात पॉसिबिलिटी की है। और ये माइट जो है, वन मोर थिंग आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू अबाउट माइट, को हम मे के पास में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और दूसरे सिचुएशन में हम मे को एज अ पास्ट फॉर्म यूज करते हैं माइट। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इफ यू आर अवेयर अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम उसको माइट को हम एज अ इनडायरेक्ट यूज करते हैं पास्ट में सेंटेंस को बताने के लिए। सो दे माइट गो टू द पिकनिक बाय टुमारो, वो पिकनिक पर जा सकते हैं कल, मतलब जा सकते हैं, लेस नंबर ऑफ चांसेस। आई माइट हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं। ओवर हियर यू कैन यानी इट्स माय सिचुएशन लाइक आई माइट हैव अ लॉट ऑफ मनी, कि मैं बता रहा हूं कि मेरे पास बहुत यानी पैसे हो सकते हैं, इट्स लेस नंबर ऑफ चांसेस। वी माइट हैव अ वंडरफुल हाउस, यानी हमारे पास एक बहुत अच्छा यानी जबरदस्त घर हो सकता है, इट्स अ लेस नंबर ऑफ चांसेस। यहाँ पे मैंने आपको अफर्मेटिव के, ओवर हियर आई हैव told you the affirmative sentences. Now we are going to move on negative or interrogative. Over here you guys can see, यहाँ पे मैंने negative और interrogative के sentences mention किए हैं, ठीक है, negative और interrogative के। You guys can see over here, you may not go to without permission, यानी मैंने वही सेंटेंस को यूज किया हुआ है बट नेगेटिव वे में बताकर, you सब्जेक्ट में आ गया और नॉट उसके बाद लगता है। you may not go विदाउट माई परमिशन, तुम नहीं जा सकते मेरी इजाजत के बगैर। शी हैज फीवर, उसे बुखार है, मैंने हैज क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगा, बिकॉज whenever we are talking about he she it or any singular noun, so we use has। ये मैंने एक वीडियो में, you guys can go through my channel, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसी से रिलेटेड लेक्चर दिया, you guys can watch my video that one। और now she may not drink cool drink, अच्छा वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती क्योंकि उसको बुखार है, ठीक है, it's called गिविंग लाइक
गिविंग एडवाइस, यू कैन से एडवाइस में तो वैसे यूज नहीं दिया जा सकता, बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की बात हो सकती है कि उसे बुखार है, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती। फाइन। सो नाउ लेट्स मूव टू इंट्रोगेटिव। मैं इंट्रोगेटिव के आपको सेंटेंस बता रहा था, जैसे कि हम आस्किंग परमिशन, या आप इसके लिए पूछते हैं मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। मे यू प्लीज हेल्प मी इन द असाइनमेंट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो असाइनमेंट में। तो आप इस तरह के बेसिकली सेंटेंसेस बना रहे होते हो, लाइक मैं मे आई हेल्प यू, समटाइम वी से क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या मे यू कम विद मी। सो ये आपकी रिक्वेस्टिंग और आस्किंग वाले सेंटेंसेस यू गाइस कैन मेक इन मे। ये आप इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इन इंट्रोगेटिव आप बना सकते हो, ठीक है, मे को यूज करते हुए। क्या मेरी मदद कर सकते हो, मे यू प्लीज हेल्प मी, और क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ, मैं आस्क यू एनी क्वेश्चन या सम क्वेश्चन, यू गाइस कैन मेक इन दिस वे। फाइन। सो नाउ लेट्स मूव टू माइट। माइट में भी इसी तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं जो लेस नंबर ऑफ चांसेस होते हैं। शी माइट नॉट कम टू, शी माइट नॉट कम टुडे, वो नहीं आ सकती। शी हैज टू गो समवेयर, क्योंकि उसे कहीं जाना है। शी माइट नॉट मतलब वो नहीं आ सकती, उसके चांसेस कम है क्योंकि उसको कहीं जाना है। ऑलरेडी इट्स शोइंग द लेस नंबर ऑफ चांसेस के सेंटेंस में ही इसमें लेस नंबर ऑफ चांसेस शो करता है। ही हैज गॉट बाउंड, वो उसको जख्म हो गया। बाउंड मींस जख्म। ही माइट नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं भाग सकता। यानी ये बात कर रहे हैं एक लेस नंबर ऑफ चांसेस की, हो सकता है भाग जाए मगर चांसेस क्या है, वो तेज नहीं भाग सकता। तो यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंसेस नेगेटिव के बना दिए। यू गाइस कैन मेक एन इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में आप स्टेट के भी बना सकते हैं, लाइक ही माइट नॉट बी इल, ही माइट नॉट बी सैड, ही माइट नॉट बी हैप्पी। इस तरीके से वो कुछ नहीं, वो बीमार नहीं होगा, वो उदास नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा, इन दिस वे। नाउ इंट्रोगेटिव में हम बात करते हैं, माइट यू हेल्प मी टू कंप्लीट दिस टास्क, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इस टास्क को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे माइट का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आप पूछ रहे हो उससे, एक लेस नंबर ऑफ चांसेस है कि शायद वो करे। माइट शी कम टू मीट मी टुडे, क्या वो मुझसे मिलने आ सकती है। यू आर आस्किंग इन दिस वे, जहां पे लेस नंबर ऑफ चांसेस है। सो यहाँ पे हमारी कहानी जो है इंट्रोगेटिव की वो खत्म हो गई है। आई हैव एक्सप्लेन यू कि आप किस तरह से नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में, हाउ यू गाइस कैन यूज द सेंटेंसेस ऑफ मे और माइट। बट एट द लास्ट I will explain you about prayers and wishes, which is very important in May. May का हम इस्तेमाल wishes और prayers की भी करते हैं। Now let's move to the next slide. Yes, over here you guys can see कि यहाँ पे usage of may in other sentences, कि मैंने यहाँ पे कुछ usage बताए हैं दूसरे sentences के। Now look at over here. May Allah give you more success in your life. हम यहाँ पे पहले इस्तेमाल may का करते हैं, then we can use subject. Subject में basically हम यहाँ पे अल्लाह यानी अल्लाह आपकी मदद करे, यानी अल्लाह आपको बहुत सक्सेस दे आपकी जिंदगी में। मे अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस इन योर लाइफ, आप पहले मे का इस्तेमाल करेंगे, देन अल्लाह यू गाइस कैन राइट, ठीक है। और गॉड, इफ यू वांट टू राइट गॉड, सो यू गाइस कैन आल्सो राइट। कि आप अल्लाह आपको यानी कामयाबी दें अपनी आपकी जिंदगी में। मे अल्लाह हेल्प हिम इन एवरी सिचुएशन, अल्लाह आपकी मदद करे हर तकलीफ में, हर सिचुएशन में, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, आप बहुत लंबी उम्र जियो। May you live long life. May you go in Elysium. Elysium basically I have used ये जन्नत, paradise. Elysium I have taken the word because it was seeming like advanced. Elysium. Elysium means कि कि आप जन्नत में जाएं, आप जन्नत में जाएं, ठीक है। May Allah protect you from evil eyes. Yeah, this is important कि आप बोलते हैं ना कि आपको यानी नजर अल्लाह यानी आपकी नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, इस तरीके से आप सेंटेंस बोलते हो। सो यू कैन कंसीडर दिस सेंटेंस में अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इविल आइज। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, और इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हो यूज करते हुए, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब एक बात मैं अभी बता दूं, मे अल्लाह गिव हिम, तो यहाँ पे आप हमेशा ऑब्जेक्ट को यूज करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज करा है। ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यू, हिम, हर, और इस तरीके से them. May Allah give them may Allah give them most may Allah give them more prosperity in their life, कि अल्लाह उन्हें prosperity is also mean success, बहुत कामयाबी दें। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो आफ्टर वर्ब, ठीक है। मे के बाद आप यूज कर सकते हो सब्जेक्ट, जो बेसिकली हम यू यूज करते हैं, मे यू गेट लॉन्ग लाइफ, और मे अल्लाह प्रोटेक्ट हर, हम इस तरह से यूज करते हैं सेंटेंसेस को मे लगाकर। आई होप यू गाइस मस्ट हैव गॉट अबाउट मे फॉर विशेस।
I hope that you guys must have liked my video. If you got the concept, and if you have any question, you guys can comment below if you want to ask anything, and you must have liked my video. And still in the end of the video, I would say that if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for watching more videos. And if you like this video, so you can share with your friends as well. So if you want to ask any questions, and if you have any content, like if you want me to teach any content, so you can do comment. Fine. So Allah Hafiz guys, we will meet in the next video.